Okay. Everybody is listening or students are coming right now? Okay. Shall we start now? Yes, sir, you can. Okay. Write down Yes, sir. elements of a system. Elements of a Morning, sir. बाद में करना मॉर्निंग अभी पढ़ाई पे ध्यान दो. Elements of a system. हाँ सुनो. Everybody has come. Maybe, sir. Yeah, I wait for 1 to 2 minutes. Okay. Then I will start. Okay. Fine, sir. Hello. Now we are start. Okay. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now today we will teach elements of a system. What we will teach? Elements of the Elements system. of a system. You see that when we companies are going to develop a software regarding any software, payroll system, banking system, airline system, railway reservation system, then intermediate when the software is going to develop intermediary or meanwhile some new changes comes into the system means you are creating informative site, then after some time after 1 2 months we think that two more text boxes they are needed. Okay, then in most cases then you understand that every time after some time we have to learn, okay, this
table we have to remove, this table we have to add, this column we have to remove, this column we have to add. Means rapidly, after some time or frequently, a new system, a new computer system, new system software, new application software is adding frequently as per user requirement, or deleting or modification something as per requirement. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Now I am speaking. System analysis operates in a dynamic environment. Anybody can understand dynamic environment? Anybody understand what is a dynamic Sir, environment? changing environment. No. Changing in Dynamic environment means think that we have created the web application, we have created the website. There is field name, father's name, mother's name, age, group, mail, email, phone number, everything there has been created. At last moment, after some when we are running that application, when we are working on that application, at that time we needed that, okay, blood group is also needed. One field is missing, blood group. One field is missing, pin code. And at run time means executing time. Dynamic environment means executing time. जैसे अभी we are taking class. I am taking class of all of you. At that time some students are coming. I am also participating in class. Then I will admit all. I am going to option admit all. I am going now. This is called dynamic environment. This is called dynamic environment. Meanwhile, class is also running and the students are also coming. You understand my point? Yes, sir. Yes, sir. So then today many software are working in a dynamic environment. Dynamic environment means as per user requirement, we have to change our application in a rapidly changing environment. Rapidly change means environment, any new changes come, we have to change it. Any new deletion come, any new modification come, we have to do each and everything. We have to do each and everything. This is called dynamic environment. Means change at a runtime. Change at runtime या work at runtime. समझ गए? Yes, sir. सिस्टम एनालिसिस लिखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ. सिस्टम एनालिसिस ऑपरेट इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट वेयर चेंजेस इज ए वे ऑफ लाइफ. हाँ बोलो बोलो. वेयर चेंजेस इज ए वे ऑफ लाइफ मीन्स चेंज रन टाइम में, रन मोड में चेंज होता रहेगा एप्लीकेशन. एप्लीकेशन विल बी चेंज एट रन टाइम. एप्लीकेशन विल बी चेंज एट रन टाइम. मतलब तुम लोग वेब अपने एग्जाम फॉर्म भरते हो कि नहीं तुम लोग? भरते हैं ना yes, सर. sir. भरते हैं. तो कितना कॉलम होगा? नेम, फादर, सेशन और एज, ग्रुप सब कुछ होगा. हाँ सर, 8 to 10 होता है. जो भी होता हो. उसके बाद हम मान लीजिए बाद में यूनिवर्सिटी को लगे यार इसमें एक फील्ड और जुड़ना चाहिए. एज, ग्रुप, फादर्स नेम, कुछ भी फील्ड और पिन कोड, कुछ भी फील्ड एक जुड़ना चाहिए, है कि नहीं? चेंज Yes, कर sir. सकते. तो वो इंड यूजर डेवलपमेंट में, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको चेंज कर सके. सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको चेंज कर सके रन टाइम मोड में. ठीक है. द एनवायरनमेंट में भी ये बिजनेस फॉर्म. एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? बिजनेस फॉर्म, एक बिजनेस एप्लीकेशन और एक कंप्यूटर सिस्टम. आप जैसे फीस भरते होंगे या आपका सब कुछ ऑनलाइन होगा तो भी क्या है, उसका एप्लीकेशन है कि नहीं? यस सर. जैसे आप लोग फॉर्म भरे एग्जाम के लिए भरते हैं ATU का, तो एक आईडी जनरेट करके वो देता होगा कि आपका आईडी है कि नहीं? Yes, sir. उस आईडी से क्या कर सकते हैं आप? कुछ मॉडिफिकेशन चाहे बाद में कर सकते हैं, कुछ करना होगा तो कर सकते हैं. एक लिमिट टाइम पीरियड के अंदर होता है कि नहीं ये चीजें? होती है सर. दिस इज कॉल्ड रन टाइम. दिस इज कॉल्ड Run time. हाँ, मतलब काम भी हो रहा है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है और उसमें हम मॉडिफिकेशन भी Changes भी कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. To reconstruct a system, the following key elements must be considered.
इसमें कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पॉइंट लिखो, एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट लिखो आउटपुट एंड इनपुट। लिखो आउटपुट एंड इनपुट। सर किसमें बोले, फिर से रिपीट कीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम में फर्स्ट लिखो, फर्स्ट। इसमें टोटल 6 होते हैं, तो पहले लिखो, पहले पॉइंट लिखाएंगे, फिर 1 बाय 1 सबको डिस्क्राइब करेंगे। हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सिस्टम में फर्स्ट लिखिए आउटपुट एंड इनपुट्स। सेकेंड प्रोसेसर, सेकेंड प्रोसेसर। थर्ड कंट्रोल, थर्ड कंट्रोल। फोर्थ फीडबैक, फोर्थ फीडबैक। फिफ्थ इन्वायरमेंट, फिफ्थ इन्वायरमेंट। सिक्स्थ boundaries and interface, sixth boundaries and interface। लिख लिए सब लोग? राइट डाउन हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। पहले मैं सर क्या लिखवा रहे थे, फिर से लिखवाइए सर। सर 6 वाला क्या कौन था? बच्चा है यार? सिक्स्थ वाला है बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। सिक्स्थ क्या है? बाउंड्रीज एंड इंटरफेस। ठीक है, बात आ रही है समझ में? किसका छूट गया बोलो, रेज करो अपना हैंड, किसका छूटा है? लिखवाऊं कि मैं आगे बढ़ूं? बताओ फिर से। आगे बढ़िए लिखवाइए सर। सर। अबे रुक। आगे बढ़िए सर। कौन बच्चा है बोल रहा है पीछे बढ़ने के लिए? अब लिखो आउटपुट एंड इनपुट। फर्स्ट पॉइंट आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट एंड इनपुट। और पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर राइट डाउन थोड़ा कर लूँगा। आउटपुट क्या होता है? किसी भी सिस्टम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि आउटपुट प्रोड्यूस, आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट की वैल्यू होती है, आउटपुट की वैल्यू होती है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सिस्टम इज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट हैज टू इट्स यूजर। आउटपुट क्या क्या हो सकता है? आउटपुट से क्या समझते हो? व्हाट एवर मीन्स बाय द आउटपुट। आउटपुट हो सकता है गुड्स भी। गुड्स का मतलब समझ रहे हो? यस सर। क्या? सामान। जैसे एक गुड्स मतलब अच्छा, एक गुड्स मतलब सामान। जैसे गुड्स का गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन। गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे गुड्स का मतलब बिस्किट की फैक्ट्री, दवा की फैक्ट्री, ये क्या प्रोडक्ट बना के देती है, इसको गुड्स बोलते हैं। ये भी तो आउटपुट है उस फैक्ट्री के लिए। यस सर। सर्विसेज, आप अभी फोन करते हो मोबाइल कंपनी को या बैंकिंग को कि मेरा ऑनलाइन काम हो जाना चाहिए, हमारा ये रिचार्ज हो जाना चाहिए, ऑनलाइन हमने ये रिचार्ज कर लिया। दिस इज कॉल्ड सर्विस, दिस इज कॉल्ड सर्विस। सर्विस। और इंफॉर्मेशन क्या हुआ? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन, कौन आ रहा है? बुलेट कुमार तिवारी। सर कौन से बुक पे पढ़ा रहे हैं, उस बुक का थोड़ा नाम कोई बता। और वेटिंग में सर, एक कोई और वेटिंग में सर, रोल 45। कर दिया उसका भी। अवध, अवध करके है बुक, अवध, AWAD।
नो सर, वो फाहिमा जबीन एक होगी। हैं? फाहिमा होगी सर, एक 45 रोल नंबर। ओके, तो अब सुनो, सर कौन सी बुक? अवध, बुक का नाम अवध, बता दीजिए। मैं शेयर कर दूंगा नाम। बुक है, ये बुक बहुत पॉपुलर बुक है, आज से नहीं, ये बुक आई थिंक मोर देन 20 ईयर्स से ये बुक बहुत पावरफुल बुक है। सर नाम बता दीजिए ना, ऑथर का नाम। अवध, अवध, AWAD। ठीक है, अब समझिए आउटपुट क्या है। इट मस्ट बी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटेंडेड यूजर। इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं बताओ। इनपुट्स आर दी, मैं बोलता हूँ, इनपुट्स आर दी एलिमेंट्स, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, डेटा। इनपुट क्या हो सकते हैं, मटेरियल हो सकते हैं, अगर दवा बनानी है, बिस्किट फैक्ट्री बिस्किट बनानी है, आटा बनानी है, तो उसका इनपुट क्या होगा, व्हीट होगा। दवा बनानी है तो केमिकल होगा, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस कुछ करना है तो डेटा होगा कि नहीं है? यस सर। आप तो समझ सकते हो, इन किसी भी सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम को भी हम बना रहे हैं, उसका जो मेन अचीवमेंट है कि हमारा गोल क्या है कि हमारा आउटपुट सही से आए। आउटपुट क्या क्या हो सकता है, गुड्स भी, प्रोडक्ट भी, सर्विसेज भी, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। इनपुट क्या क्या हो सकता है, मटेरियल, या 4 ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसे तुम लोग क्या अभी इनपुट हो, बच्चे इनपुट हो रहे हैं, बाद में पढ़ लिख के जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएंगे तो वो आउटपुट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो बहुत बड़े कंपनी में काम करोगे तो उसमें आउटपुट होगा है। डेटा भी, डेटा मीन्स जब प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस डेटा मैंने शायद कल बताया तुम्हारी क्लास को, किसको ये पता नहीं, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ अब मैं बोल रहा हूँ that enter the system for processing. Output is the outcome of processing. Output क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। after processing what we get, after processing what we get is called output. After processing what we get is called output. फाइनल रिजल्ट। समझ गए, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब लिखो, ए सिस्टम फिट्स एन इनपुट टू फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे फाइनेंशियल कंपनी है, उससे क्या डाला, उसको गुड्स देना है, सर्विसेज देना है। फाइनेंशियल कंपनी तो मटेरियल डाला, और क्या डाला, फाइनेंशियल मतलब मनी डाला, पैसा भी तो डालेगा इनपुट में, तब तो प्रोड्यूस होगी, तब तो लेबर आएंगे कि नहीं। देखो, इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट हेयर दैट डिटरमाइनिंग द आउटपुट इज ए फर्स्ट स्टेप in specifying the nature, amount and regularity of the input needed to operate a system. For example, in system analysis, the first concern is to determine the user. सर लिखना है सर। नहीं मैं बोल रहा हूँ। For example, in system analysis, the first concern is to determine the user's requirement of a proposed computer system. Proposed computer system का मतलब क्या समझे आप लोग? नहीं समझे सर। अब फिर देखो, मैं बता रहा हूँ, एक होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम, एक होता है कैंडिडेट सिस्टम। क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम और कैंडिडेट सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम हम उसे बोलते हैं, दैट सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ, व्हाट एवर सिस्टम इज राइट नाउ इन प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो अभी है उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम। और जिसे बनाना है, जिसको हमको बनाना है, वी हैव टू क्रिएट द न्यू सिस्टम, वी हैव टू क्रिएट दैट न्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड प्रोपोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्रोपोज्ड पूरा बोलो, आधा मत बोला करो। प्रोपोज्ड सिस्टम, या उसको कैंडिडेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। प्रोपोज्ड या दूसरा नाम कैंडिडेट सिस्टम। हाँ, और जो अभी जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में, उसको क्या बोलेंगे? एग्जिस्टिंग सिस्टम।
एग्जिस्टिंग सिस्टम, और जिसको बनाना है और सिस्टम भी तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा टर्म यूज करें ताकि बोलने में भी अच्छा रहे हैं। यस सर। तो जो अभी सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग है, उसको एग्जिस्टिंग है, जिसको बनाना है, जिसको फ्यूचर में हम बनाएंगे, वी विल डेवलप, दैट इज कॉल्ड प्रोपोज्ड सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम। ठीक है। और कोई सा भी हम सिस्टम अगर डेवलप करने जा रहे हैं, कोई सा भी सिस्टम, मतलब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो एक तरह से आउटपुट हुआ, विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो भी आउटपुट हुआ, पेरोल सिस्टम बना रहे हैं वो भी एक आउटपुट हुआ, कुछ भी बना रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं वो भी एक आउटपुट हुआ। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ये बताओ। व्हाट एवर वी नीड टू डेवलप ए न्यू सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलो। बच्चे अभी तक आ रहे हैं। सरवन झा, बताओ। डाटा चाहिए सर, केमिकल मेडिकल। मीन्स वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट। यस Yes, sir. we need first of all input. On that input we will process, means input रहेगा तब तो आप प्रोसेस करोगे, तब तो आउटपुट निकलेगा। तो if we are going to develop any new system, any candidate system, any proposed system, then first of all input data, means data is required, input is required. Okay, Okay, sir. यस सर। एक डायग्राम है, मैं कल आपको दे दूंगा। कल भी बोले थे। पहले पढ़ो ना भाई, अभी लेके करोगे क्या डायग्राम, हमको समझ में आता है कि तुम लोग अभी से नोटबुक अरे पढ़ाई करो, थोड़ा मजा, Yes, sir. पढ़ाई का मजा लो। क्या ये सब चीजें, ये सब तो एग्जाम के टाइम में भी कर दोगे, लेकिन पढ़ लोगे ढंग से तो जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ। अब लिखो सॉरी। अब प्रोसेसर, पहला क्या बताया मैंने, इनपुट एंड आउटपुट, सेकंड प्रोसेसर। अच्छा, प्रोसेसर क्या करता है ये बताओ। प्रोसेस क्या है, एक्चुअल प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग होती है। इनपुट तो आपको मिल गया नया सिस्टम बनाने के लिए, प्रपोज सिस्टम या कैंडिडेट सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन प्रोसेसिंग तो चाहिए ना। यू नीड प्रोसेसिंग Yes. और द कैलकुलेशन, फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, वेरिएबल एग्जीक्यूटिंग, मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, ग्लोबल वेरिएबल एग्जीक्यूटिंग, class executing, object executing. How it will possible without processor? No, na? Then No, sir. pictures start from the processor. Input you have taken, variable, function, keyword, whatever you want, you have taken for the existing, for the candidate system. Now picture comes to the processor. Processor means processing your input, processing your इनपुट। इनपुट। अब मैं बोल देता हूं, ये अब समझ गए होगे तुम लोग। द प्रोसेसर इज द एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसर क्या करता, ट्रांसफॉर्मेशन करता, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता। इट इज द ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम। ये ऑपरेशनल कंपोनेंट है, आप लोग को पता है, सीपीयू है। प्रोसेसर्स में मॉडिफाई द इनपुट टोटली और पार्शियली। जब प्रोसेसिंग करेगा तो चेंज तो हो ही जाएगा, इनपुट थोड़ी रह जाएगा, वो तो आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा, हैं? Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द आउटपुट। जैसा हम लोग कमांड देंगे कि आपको ये करना है, आपको 2 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एमएस वर्ड बनाना है, एमएस एक्सेल बनाना है, पावर पॉइंट बनाना है, उसी तरह का आउटपुट आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. दिस मीन्स दैट एज द आउटपुट स्पेसिफिकेशन चेंज, so does the processing. In some cases input is also modified to enable the processor to handle the transformation. Sometimes हम लोग इनपुट को भी चेंज करते हैं ना? Yes, sir.
अब हम लोग आए थर्ड टॉपिक, दैट इज कंट्रोल। फर्स्ट हमने क्या बताया, इनपुट एंड आउटपुट, सेकंड प्रोसेसर, थर्ड क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है ये बताओ तुम लोग, थोड़ा तो बताओ। नहीं मालूम? कोई भी नहीं बताएगा? 2 लाइन। सर जब प्रॉपरली वर्क करने में सर हेल्प करता है उसी को कंट्रोल कहते हैं सर। अब मैं बोल देता हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ, सुन लेना, फिर मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा। हैं? यस सर। द कंट्रोल एलिमेंट गाइड्स द सिस्टम, guides the system. It is a decision making subsystem that controls the pattern of activities governing input, processing and output. In an organizational context, management as a decision making body controls the inflow, handling and outflow of activities that affect the welfare of the business. In a computer system, the operating system and accompanying software influence the behavior of the system. Output specification determine what and how much input is needed to keep the system in balance. In system analysis, knowing the attitudes of the individual who controls the area for which a computer is being considered can make a difference between the success and failure of the installation. Management support is required for securing control and supporting the objective of the proposed change. हाँ, कंट्रोल क्या करता? It controls the overall activities. It controls the overall activities of the computer system. ठीक है, कि जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, इनफ्लो क्या है मतलब इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटफ्लो क्या है मीन्स आउटपुट क्या है. समथिंग इज प्रॉब्लम इन इनपुट, समथिंग इज प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग, समथिंग इज प्रॉब्लम इन आउटपुट. तो ये सारा कुछ कंट्रोल करके देखता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. बात समझ में आ रही है? यस सर. मतलब ये क्या कहता है, जैसे सीपीयू, एएलयू, सीयू क्या कहता है, कंट्रोल यूनिट है ना. नाउ फोर्थ पॉइंट इज फीडबैक. फीडबैक क्या होता है? जैसे कभी कभी आप कोई चीज काम करते हो किसी सॉफ्टवेयर पे, फिर कहता होगा फीडबैक आप लिख के दीजिए. रेटिंग. क्या रेटिंग जिसको बोलते हैं देना. वेरी गुड. जैसे बच्चों का फीडबैक कैसे पता चलता है कि एग्जाम दिए उसका जैसा परफॉर्मेंस आया, फिर टीचर बताते हैं आपको ऐसा फीडबैक आया रिजल्ट के बाद माध्यम से हैं. तो फीडबैक क्या हुआ? सर फीडबैक जैसे जो हम लोग इनपुट कोई करते एलिमेंट है वो अच्छा हैं से वैसा वर्क हम कर लोग को रहा है. आउटपुट मिला या नहीं मिला उसे फीडबैक कहते हैं. मतलब प्रोसेसिंग कैसा कर रहा है. आप किसी वेब एप्लीकेशन पे काम करते हो, कोई सा भी काम पे, तो आपसे पूछता है कैसा लगा फीडबैक आपको काम करने में, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट और बैड है. यस सर. कभी कभी आपके भी देखते होंगे ये सब चीजें. तो ये क्या हुआ फीडबैक. अब मैं बोलता हूँ फीडबैक भी एक डायनेमिक टाइप का है कि हम यूजर से काम भी करवा रहे हैं, यूजर काम भी कर रहा है और हम चेक भी कर रहे हैं कि फीडबैक कैसा है, फीडबैक कैसा है किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम का. किसी कभी कभी तुम लोग किसी वेब एप्लीकेशन पे काम करते हो या किसी एप्लीकेशन पे करते हो, यार ये सॉफ्टवेयर तो रुला दिया हमें, या ये वेबसाइट तो खुलने में परेशान कर रखा है, घंटा भर लगा रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा टाइम है. कभी ऐसा होता है? यस सर. तो उससे तुम लोग इरिटेट कर जाते हो, उस वेबसाइट पे जाने से बचते होगे. बहुत इरिटेशन होता है सर, बहुत ज्यादा. तो उसका फीडबैक अच्छा होगा कि बुरा होगा? ऑफ कोर्स बुरा होगा सर. बुरा होता है सर. बहुत बुरा फीडबैक देंगे हम सर, एक रेटिंग नहीं देंगे उसको सर वेबसाइट
सर वेबसाइट का छोड़िए इंस्टॉल ना, कर आपने दें। सिम क्या कहे? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। मतलब बहुत बुरा रेटिंग देंगे सर उसको, फीडबैक हमारा बुरा होगा उसके क्यों? रिगार्डिंग। क्योंकि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, और तो कोई नहीं कारण है। नहीं है, आपसी लड़ाई तो उससे नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हुए आप उस प्रोडक्ट से, हैं? यस सर, एग्जैक्टली। वेस्ट किया ना टाइम सर, इसीलिए। हाँ, अब मैं बोल देता हूँ, सुन लेना फीडबैक के बारे में। कंट्रोल इन ए डायनेमिक सिस्टम इज अचीव्ड बाय फीडबैक। ठीक है, कंट्रोल इन डायनेमिक सिस्टम इज अचीव्ड बाय फीडबैक। फीडबैक पे आपको सही बात पता चल जाती है तो आप अपने अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। फीडबैक मेजर्स आउटपुट अगेंस्ट स्टैंडर्ड इन सम फॉर्म ऑफ cybernetic procedure that includes communication and control. Output information is feedback to the input and or to management for deliberation. After the output is compared against performance standard, changes can be result in the input or processing and consequently the output. अगर फीडबैक में देखा गया कि इनपुट में प्रॉब्लम है तो इनपुट को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेसिंग में दिक्कत है, मतलब काफी स्लो है, तो उसको चेंज करेंगे। आउटपुट सही नहीं आ रहा है अप्रोप्रिएट, तब हम उसको चेंज करने का कार्य मतलब काम करेंगे। तो क्या है फीडबैक? क्या है फीडबैक? जब आता है तो वो बहुत कुछ आपको चेंज करने में हेल्प करता है कि कहाँ यूजर को प्रॉब्लम हो रही है। फीडबैक में भी पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक रीइंफोर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक आता है तो आप परफॉर्मेंस से खुश होते हैं, परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और निगेटिव फीडबैक जनरली प्रोवाइड्स द कंट्रोलर विथ इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन। और निगेटिव फीडबैक के बाद कंट्रोलर मींस सीपीयू या मैनेजमेंट में मैनेजर एक्शन भी हो सकता है, उसमें निगेटिव फीडबैक पे हो सकता है कि नहीं? यस सर। In system analysis, feedback is important in different ways. During analysis, the user may be told that the problem in a given application verify his her initial concern and justify the need for change. नेगेटिव फीडबैक आ जाने के बाद इनिशियल चेंज करना शुरू करता है एप्लीकेशन का। ठीक है, अनदर सर बोलो। सर अगर हम किसी के बारे में अगर निगेटिव फीडबैक देंगे तो वो हमको क्लेम भी कर सकता है ना सर? क्लेम क्यों करेगा? जैसे चुनाव में हम वोट डालने जानते हैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को, तो हम यस उसके सर। परफॉर्मेंस के आधार पर डालते हैं कि नहीं? यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव वाट एवर है। यस सर। The user informs the analyst about the performance of the new installation. The feedback often results in इसके बारे enhancement to में meet देना the है। user's requirement. User's requirement के हिसाब से फीडबैक होता है। यूजर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीडबैक होता है। हाँ होता है। अब मैं आपको सर शेयर हाँ बोलो। नेगेटिव मतलब नेगेटिव आएगा तो सब मैनेजमेंट आउटपुट इनपुट सभी को बदल चेंज करना पड़ेगा सर। और को जहां तक प्रोसेस को जितना मिनिमल चेंज होकर मैक्सिमम आउटपुट हो वो करेगा। वो पूरा सिस्टम चेंज करना दैट इज ए वेरी चैलेंजिंग जॉब, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर अगर फॉल्स फीडबैक अगर दिया कोई तो तब उसका क्या कर सकते हो? यू कांट डू एनीथिंग है। तो अब आदमी ही जब गिरते स्तर पे आ जाए उसका कोई उपाय है दुनिया में? नहीं सर। नो सर। अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जस्ट ए मिनट। जस्ट लाइक इमेज। एक मिनट एक मिनट। मैं वेटिंग रूम को ही देखता रह जाता हूँ।
देखो मैंने दिख रहा है सब लोगों को? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। सर देखो जल्दी। तो कोई नहीं, लिखना है, नहीं लिखना है कि लिखना है तो बाद में शेयर हो जाएगा, पढ़ लो जल्दी जल्दी पहले। ओके सर। रीड करना है। क्या तुम लोग को लिखवाते चलें, क्या करें बताओ? सर पढ़ा दीजिए सर, सर, लिख बाद में भी लेंगे। सर पढ़ाते जब चलिए, लिखेंगे बाद में। ऑनलाइन पीडीएफ ही है तो इसको लिंक को शेयर कर दीजिएगा सर, बस लिखवाने का क्या जरूरत है। कितना मैंने कल बताया था सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। कल बताया था ना मैंने। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कल बताया था, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। यस सर। एलिमेंट्स ये देख लो, मैं यही बताया हूं ना अभी। यस सर। देख लो, ये डायग्राम तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। नो सर, नो तो बन जाएगा ये तो। ये बना लो क्योंकि इसमें आलस बन जाएगा बहुत। नहीं सर, आलस नहीं। बनाओ सर अभी बना ले। अब बना लो ना, लाइन तो खींचना है, कौन सी बड़ी बात है। इधर से निकालो, उधर से रख। ओके हो गया ना? एवरीबॉडी हैज डन? यस सर। यस सर। यस सर। How- बुक का पीडीएफ है चाहिए। आपका बुक का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ नहीं है अभी मेरे पास। आई एम स्टडिंग फ्रॉम द बुक एंड आई एम deliberating lectures from the book. Presently I have no PDF. I will create the PDF. Okay. ओके सर। When your exam, second sem exam, when happened? Which month? नो आइडिया सर। अभी फर्स्ट सेम का एग्जाम ही नहीं हुआ है सर। हैं? अभी तो फर्स्ट सेम का एग्जाम ही नहीं हुआ, सेकेंड सेम कैसे? सेकंड सेम शुरू हो गया बिना एग्जाम हुए? सिटी वाला नहीं, इंटरनल ही है। इंटरनल तो हो चुका है। कॉलेज लिया है एग्जाम सर, अब पता इंटरनल ऑनलाइन हुआ था सर। सरकार पगला गया है सर। ठीक है, अब एग्जाम हो जाएगा जल्दी, 10-15 दिन में। अब सेकेंड सेम का 7 तारीख का कॉलेज खुल रहा है। देखो नोटिस जाएगा, जैसा होगा तुम लोग को मैसेज चला जाएगा। यस सर। तो कौन सा एग्जाम होने के बारे में बोल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का कि सेकंड सेमेस्टर? सेकेंड सेमेस्टर का सर बोल सेकंड रहे हैं। सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर 10 दिन पहले सर्वे हुआ है सर कोर्स। नहीं, वो नहीं, पूछ के दिसंबर तक में कब होगा सर, होता है ये दिसंबर नहीं- तक में होगा सर। तो टाइम है, यू हैव टू स्टडी हार्ड। यस सर। हार्ड। सर लगता है कि बीसीए जून पे खत्म हो जाए। आउटपुट एंड इनपुट ये पता हो गया, ये चीजें डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। हाँ सर। प्रोसेसर डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। हाँ सर। कंट्रोल डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। यस सर। है जरूरत? नो सर। फीडबैक? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद इन्वायरमेंट और बाउंड्रीज ये और टाइप्स ऑफ सिस्टम ये कल बताऊंगा, पहले अटेंडेंस बना लेता हूँ अब। हैं? ओके सर सर। यस सर भेज देता है घींच के। सर मेरा क्वेश्चन है सर। बोलो शुभम सर। बोलो, सर बोल बोलो। रहे हैं कि सर
कॉलेज खुले तो सर एक ही वाला एग्जाम भी होगा सर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट भाई सेमेस्टर का। कोरोना में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कोई चीज कहना मुश्किल है। यस सर, तो नहीं हो तो ज्यादा अच्छा कोरोना रहेगा ना बिल्कुल सर, इसीलिए तो सर इतना कोरोना है सर। सर का हम लोग सेकंड सेम में आ चुके हैं तो फर्स्ट सेम का होगा कि नहीं होगा ये बताइए पहले। यूनिवर्सिटी सर का थोड़ी है सर का। यूनिवर्सिटी पगला गया है, कभी भी ले लेगा एग्जाम। नहीं पता है भाई। मैं सुन लो, हाँ सर। मैं पूछूंगा जैसे जैसे रोल नंबर ऐसे ऐसे बोलते चलना, जब जब बोलूंगा 1 तो P 1 से 5 बोलूंगा, ऐसे करके बोलना है, यानी कि सब लोग लगातार नहीं बोलना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है सर अटेंडेंस भैया आप आंसर नहीं दिए सर क्वेश्चन का सर। क्या भेजो मत, उसमें दिक्कत होती है। मैनेजमेंट कहा है कि पूछ पूछ के, नहीं तो बच्चे गोला मार रहे हैं। हाँ यस सर, बहुत मारते हैं। 1 to 5 गोला सर 3 गोला मारता है 3 सर 1 to 5 में बोलो। सर रोल नंबर 3 4 5 उसके बाद 1 भी है सर। सर 3 सर हेलो। हाँ 1 3 4 5। यस सर। यस सर 6 to 10 बोलो। 8 सर रोल नंबर 8 रोल नंबर 8 और 7 सर 1 बन गया ना। क्या घड़ 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 क्या होने लगता है। 6 सर 6 6 7 8 और 10 सर 10। 11 to 20 बोलो। 1 by 1। 11 और 13 और 16 14 और 15 सर 15 सर 15 और 16 और 17 और 19 और ठीक है 20 से 30 बोलो 1 by 1। 21 गोला 21 गोला फिर 23 सर गोला फिर क्या कर रहे हो बेवकूफों की तरह बातें। 22 23 सर 23 और 24 हो गया 24 और 22 22 हो गया और 29 सर 29 और 29 21 हो गया सर 21 हाँ हो गया। अब मैं बोल देता हूँ 20 से 30 के बीच। 21 22 23 24 29। ठीक है सर। सर रोल नंबर 6 सर रोल नंबर 6 नेटवर्क वीक है सर मेरा। हाँ हो गया हो गया। अब 30 से 40 बोलो। 6 हो गया। 31 सर 38 सर 31 32 38 34 38 39 36 38 वाले कितना घबरा क्यों रहे हो भाई तुम। 36 31 32 34 36 38 38 उसके बाद 39 सही पकड़ा भाई 39 हाँ। अब 40 से 50 के बीच बोलो। 39 हो गया। हाँ हो गया। 41 सर 41 44 44 45 45 गोला है 45 41 44 45 47 46 47 48 48। अब 50 से 60 के बीच 51 51 56 55 सर 55 51 51 52 55 56 आगे 58 58 सर 58 ठीक है। अब 60 से 70 के बीच सर 60 60 64 सर 64 65 65 65 हो गया। आगे 66 67 68 69 70 गोला मार दिया सर 70 से 80 के बीच बोलो। 72 सर 72 79 सर 79 77 सर 77 और 78 78 और 77 सर हो गया भाई। उसके बाद 79 हो गया। हाँ हाँ। अब 80 से बोलो। 82 सर 82 88 सर 105 सर 88 सर 88 82 88 उसके बाद 87 सर
87 सर 89 सर 90 सर 90 83 सर। अब मैं बोल देता हूँ, 90 सुन लो। 87 हो गया सर। हाँ 82, 83, 87, 88, 89, 90। 90 से 100 म्यूजिक बंद करो। 93 सर 93 93 95 सर 95 97 सर 97 98 सर 98 98 उसके बाद 97 सर। अरे हो गया भाई, एक ही बात को 10 बार बोलते हो। 97 98 हो गया सर। हाँ हो गया। उसके बाद 98 के बाद फिर 100 से 110 बोलो। 103 सर 102 सर 102 आगे 110 सर 106 और 110 सर मैं बोल रहा गोला गोला 103 और 104 सर 105 हो गया। फिर कर रहे हो मिसबिहेव की तरह। 110 सर। अब मैं बोल देता हूँ, सुन लो। 102, 103, 105, 106, 110 कोई छूट रहा है? 107 and 104 सर। 104 और 107 ठीक है। अब 111 से आगे 111 सर। अभी तुरंत आया, अटेंडेंस बन गया। 111 और 25 बना दिया 111 उसके बाद 113 113 और 114 सर 25 बना दीजिएगा 114 और हो गया सर। 71 सर। खत्म 71 सर कनेक्शन नहीं था मेरे में। 120 के 106 भी है सर। हाँ लिख लिया। 120 के बाद नहीं है। 71 सर 71 मैंने लिख लिया। 25 बना दीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब 106 सर 106 कितनी बार बोलोगी? हो चुका है। थैंक यू सर। ओके, कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? सब्जेक्ट में कोई दिक्कत बताओ। नो सर 50 बना सर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या बोले? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्या है इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है सर। कोई डाउट? हमारे एजुकेशन में कैसा लगा तुम लोग को? बहुत अच्छा सर। बना दीजिए सर, बहुत बढ़िया सर। सर आप बहुत अच्छा ठीक है, पढ़ाते हैं। ठीक है, तब रखते हैं फिर। अब कर रहे हैं, मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है, सर ये सर ओके ठीक है। सर।